So friends, after discussing what is production, meaning of production, understanding the various forms of utility, now let's go ahead with understanding what is the factors of production and how they are broadly classified. Right? Factors of production. नाम क्या है? Factors of production. ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। यानी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें हमें लगती हैं, दोज आर नथिंग बट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या लगता है? क्या लेबर लगते हैं क्या प्रोडक्शन के लिए? जी हाँ। क्या लैंड लगती है क्या? हाँ। फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन लगेगी, प्रोडक्शन होगा फैक्ट्री में और फैक्ट्री खड़ी करनी होगी ज़मीन पर, तो क्या हमें लैंड लगेगी क्या? यस। क्या हमें मशीनरी लगेगी क्या? यस। क्या हमें रॉ मटेरियल लगेगा क्या? यस। क्या हमें लेबर लगेगा क्या? यस। क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी क्या? यस। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें लगेगी। सो ऑल दीज फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर गुड इज कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, बट majorly we are going to discuss about four major factors of production, that is land, capital, labor and entrepreneur. Are we okay? What are factors of productions? Factors which help in producing a particular good or service, जिसमें first आता है land. Right? If you ask a common man, मैंगो आदमी को पूछ लो, आम आदमी को पूछ लो लैंड यानी क्या, तो बोलेगा जिस जमीन पे हम खड़े दैट इज लैंड। द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑन विच वी आर स्टैंडिंग इज नथिंग बट लैंड। द कॉमन मैन इज वेरी करेक्ट as per his definition, but in economics land has a different definition. कैसे different definition? Have a look here. Right? 2 मिनट थोड़ी कलाकारी करता हूं मैं। So see, this is the surface of earth. Right? This portion is above the surface of earth. Above the surface of earth. Yes or no? And this particular ये है पानी, नदी है समझ लो। नदी के नीचे का ये जो है ये क्या है? सरफेस बिलो द अर्थ। राइट? या फिर जो ज़मीन के नीचे का सतह होता है जिसे हम कहते हैं अंदर की तरफ जो होती है ज़मीन की तरफ, मुरूम वगैरह जो कुछ भी मिनरल्स वगैरह नीचे, वो कहाँ होते हैं? ज़मीन के नीचे होते हैं। मिनरल्स कहाँ होते हैं बच्चों? ज़मीन के नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं? ज़मीन के नीचे होते हैं सर। राइट? नाउ दिस इज सरफेस बिलो द अर्थ। So in economics, land does not only mean the surface of earth, but it also means surface of earth, surface, all the free gift of nature which are on the surface of the earth, which are above the surface of the earth, which are below the surface of the earth. Above the surface of earth क्या है? Air. So air will be also be considered as land in economics. Below the surface of the earth क्या है? Minerals. So they will also be considered as land. Right? पानी कहाँ है? सरफेस के ऊपर। राइट? सो पानी भी विल बी कंसिडर्ड एज लैंड। राइट? पानी, समुंदर, नदी, तालाब, लेक, दिस ऑल बी कंसिडर्ड एज land. So as per economics, land means all the free gift of nature on the surface of the earth, above the surface of the earth and below the surface of the earth. Are you understanding the point? किस तरह से differentiate करता है land का definition from the common man's definition? As per the common man's language, land means the surface of the earth, but as per economics, land not only means surface of the earth, but it means free gift of nature above, below and on the surface of the earth. Are we clear with the definition of land? Yes or no? Right? After understanding what is the definition of land, now let's move ahead to what are the characteristics of land. Right? जिसमें first है land is a free gift of nature. What do you think? ज़मीन क्या इंसानों ने बनाई या फ्रीली अवेलेबल थी? राइट? जिसे हमें बताया जाता है, हिंदू धर्म के हिसाब से बताया जाता है, ज़मीन जो पृथ्वी का निर्माण जो है ब्रह्मदेव ने किया है। राइट? लॉर्ड ब्रह्मा हैड क्रिएटेड द अर्थ। क्या इंसानों ने बनाई? नहीं। अगर हम हिस्ट्री में भी जाओगे तो मैन का एवोल्यूशन हुआ है अर्थ के ऊपर, यानी अर्थ उससे पहले थी, उसके बाद मैन का एवोल्यूशन हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या ज़मीन इंसान ने बनाई? नहीं। ज़मीन फ्रीली अवेलेबल हुई, वो बात अलग है। अब जाके हमने ज़मीनों के दाम लगाए,
ज़मीनों के दाम लगाकर ज़मीन को वैल्यू दी है, लेकिन जब भगवान ने दी थी तब तो फ्री थी। यस, इसीलिए लैंड इज कंसिडर्ड एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। द सेकंड पॉइंट हियर इज द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। क्या हमारा इंडिया का मैप हर साल बढ़ता जाता है? क्या किसी कंट्री का मैप हर साल छोटा होते जाता है? या जो आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, आपके आजोबा के आजोबा के आजोबा ने जो देखा होगा उतना ही नक्शा इंडिया का वैसे ही है? रादर देन सेइंग इंडिया, पूरा ग्लोब जो आप देखते हो, ग्लोब पे जितनी ज़मीन है, जितनी ज़मीन दिखाई देती, ग्लोब दिखा है ना स्कूल में, उस ग्लोब के ऊपर जितनी ज़मीन दिखाई देती है क्या उतनी है या हर साल बढ़ती रहती है? नहीं, ज़मीन जितनी थी उतनी ही है, राइट। एक गांव में, एक शहर में जितनी ज़मीन आती है उतनी ज़मीन रहेगी, वो ज़मीन बढ़ेगी नहीं और कभी कम भी नहीं होगी। इससे हमें क्या समझ में आता है? द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, दैट मीन्स यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लैंड। जितनी ज़मीन है उतनी ही रहती है, ना उसे आप कम कर सकते हो ना उसे आप बढ़ा सकते हो। बात समझ में आ रही है, राइट। नेक्स्ट, लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या ज़मीन खुद से प्रोडक्शन करती है क्या? नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मेरे पास 2 एकड़ खेती की ज़मीन है और मैं उस खेती पर कोई भी खेती की एक्टिविटी नहीं कर रहा, क्या अपने आप प्रोडक्शन होगा क्या? क्या अपने आप सोयाबीन कॉटन बनेगा क्या? क्या फिर उसके ऊपर मुझे फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने होंगे? फार्मिंग एक्टिविटीज़, प्लोइंग, सोइंग, फर्टिलाइज़र करना पड़ेगा, फिर हार्वेस्टिंग करना होगा, फिर जाके मुझे प्रोडक्शन मिलेगा। यस, आई हैव टू परफॉर्म ऑल दिस फार्मिंग एक्टिविटीज सो एज टू गेट द प्रोडक्शन फ्रॉम माई फार्म लैंड। So what is understood? Land itself won't give the production. We have to put in some efforts so that we can get production from the land. इससे क्या समझ में आता है? एक्टिव और पैसिव इंग्लिश में सीखा है। जो खुद से करता है दैट इज एक्टिव, जो कुछ नहीं करता दैट इज पैसिव। सो लैंड खुद से करता है क्या? नहीं। लैंड के ऊपर हमें कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती तब जाके लैंड से प्रोडक्शन निकल सकता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लैंड खुद से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। इज दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, land is immobile. What is mobile? Immobile, mobile means which can be moved from one place to another. What is immobile? Which cannot be moved from one place to another. अभी गर्मी का बहुत भयंकर सीज़न है हमारे इधर, हमारे परभनी रीजन में। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से, समर काफ़ी सीवियर होता है, 42-45 इस तरह से टेम्परेचर है। इसलिए अब मन नहीं लग रहा, इसलिए घर निकाला बुलडोज़र में, उसको लेकर गया मनाली, समर वेकेशंस मनाली, वापस घर लाकर लगा दिया। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। सर क्या पाँच चट मार रहे? वही तो बात बोल रहा हूँ। आपको मन आया अभी समर वेकेशंस है तो चलो अपना घर ही लेकर जाते हैं, मनाली में थोड़े दिन एंजॉय करते हैं, वापस घर लाकर अपनी जगह पे रख देते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है सर। इससे मतलब क्या समझ में आता है? वी कैन नॉट मूव लैंड, इसलिए लैंड इज इमोबाइल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैंड हैज़ मल्टीपल यूजेस. Land can be used for various purposes. Land has multiple uses, right? You can use land for farming activities, that is agriculture purpose. You can use land for residential purpose. You can use land for industrial purpose. इस तरह से अलग अलग यूसेज हम लैंड के कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं लैंड हैज़ मल्टीपर्पज यूज और मल्टी यूजेस। लैंड इज हेट्रोजीनियस. लैंड इज हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है यहाँ पर? 2 पीस ऑफ लैंड डिफर फ्रॉम अनदर, यानी कि मान लो ये 1 एकड़ लैंड है और इसके बाजू में 1 एकड़ लैंड है, राइट? दोनों भी 1 एकड़ लैंड है, राइट? लेकिन इसमें से ये जो 1 एकड़ लैंड है, इसकी सॉइल की क्वालिटी इज गुड कंपेयर टू द अनदर पीस ऑफ लैंड। सो क्या होगा? इस वाले लैंड में मुझे 2000 क्विंटल्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन मिलेगा और इस वाले लैंड से मुझे 1500 क्विंटल्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन मिलेगा। हाँ या ना? ज़मीन आजू बाजू में है, लेकिन जो ज़मीन में सॉइल की जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी वजह से दूसरे पार्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा है, पहले वाले पार्ट में प्रोडक्शन कम है। दिस इज़ कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस। जैसे कि देख लो, हमारे महाराष्ट्र में काली मिट्टी या काली रेती मिलती है, लेकिन आप डाउन साउथ में जाओ तो रेती भी जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो रेड कलर की मिलती है। तेलंगाना में और में अगर आप जाओ तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो रेती यूज़ करते हैं वहाँ पे वो है रेड कलर की रेती, राइट? क्योंकि वहाँ पे लैंड में रेड सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली मराठवाड़ा और साइड में ब्लैक सॉइल पाया जाता है रादर देन रेड सॉइल, राइट? सो दिस डिफरेंशिएशन इज called as heterogeneous characteristics of land. That means 2 pieces of land can differ, right? There is land which is on the hillside, there is land which is on a table land or a plain land, right? So those both pieces of land would differ in their characteristics.
farming cannot be carried out on a hillside, but farming can be easily carried out on a plain table like land. Is this point clear? So these are all the features of the land, or you can call it the characteristics of land. That is, land is a free gift of nature, supply of land is fixed, land is permanent and has indestructible powers, land is a passive factor of production, land is immobile, land has multiple uses, and land is heterogeneous. Is this point clear? Is this point clear? So here we end the first discussion on the first most factor of production, that is land. Thank you so much.